Morning students, welcome back to the class 11. Subject business study. Today we are going with the lecture number 15 and we will start our pre-midterms last topic, cooperative society. In cooperative society, we will see the meaning, features, merits and demerits and the type of cooperative societies. So let's begin with the meaning of cooperative society. It has been framed in next slide according to the video. Just concentrate the terms which has been written in that, and some important highlighted points are also been there in cooperative society topic. Here it has been mentioned that cooperative society is a voluntary association of person who joins with the motive of welfare of the member. यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ना, वो फॉर्म वॉलेंट्री एसोसिएटेड पीपल्स के साथ स्टार्ट होती है। उनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, जो उनका मेन मोटिव होता है, वो सोशल वेलफेयर करना होता है, इसीलिए वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं। सो द वर्ड इज क्लियर, cooperative society is an voluntary association of a person who joins together with the motive of welfare of the members. So ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड डेफिनेशन में से एक है। तो यहाँ पे अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग में एक क्लियर वर्ड यूज किया गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन वॉलेंट्री एसोसिएशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट। इन शॉर्ट, देयर इज नो प्रॉफिट, they are doing business with the less profits, not maximum profits. It aims to protect and promote economic and social interest. It is association of persons, not of capital. It is a group of people. There is not a huge capital. The members who are participating in cooperative society, they are investing their money to make the organization successful. Here, cooperative society is to be compulsorily registered with the Cooperative Societies Act 1912. Here it has been mentioned Cooperative Society Act 1912. Here, minimum 10 members are required for starting up the cooperative society. That members are the responsible ones to raise capital through issue of shares. The society has a legal identity. A society is a cooperative society has a legal identity after registration. Just one point has to be cleared very much, is that once the 10 member has registered with the organization, if the person wants to leave, it's okay, fine, they can leave it. There is no restrictions according to the partnership, where one partner goes, partnership deed gets cancelled. So in cooperative society it is not like that. Once the partner is going on, he or she can continue. If he or she doesn't want to continue, they can go. The cooperative society will not be demolished or closed. Here it is not impacted, but minimum 10 adult persons should be required for cooperative society to start. So I hope you have understood this. So we will go with the features also. We are going with the another part as features. In features, the first point is voluntary membership. It is not necessary that every individual has to join that cooperative society. Here in cooperative society, minimum 18 years of age people who is voluntarily wants to join the cooperative society, he or she have to give a certain notice. There is no force to join the cooperative society on the basis of religion, caste, or gender. Discrimination is not there. If the person is really interested in cooperative society, he is working on a voluntary basis, he or she must give a certain notice, and he or she can join and leave also according to given a period of notice. आप जब तक नोटिस दोगे तब तक चलेगा,
आप एज एन इंडिविजुअल के ऊपर कभी फोर्स नहीं आएगा कि आपको वॉलेंट्री एसोसिएशन में ज्वाइन करना ही है या कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको ज्वाइन करना ही है, ऐसा कुछ नहीं। आपके डिजायर पे ये फुलफिल होता है। आपको नोटिस देना होता है ज्वाइन करने के लिए और लीव करने के लिए भी नोटिस देनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को हम देखें तो एनी पर्सन ऑफ 18 years and above have common interest can become its member. There is a free join and leave in the society. His desire is very important by giving a notice. There is no force to join as a member by the continued member. There is no discrimination on the basis of religious caste and gender. These points are being these points are being assured that voluntary membership is not by force, it's by will. Next part is legal status. If we are talking about legal status, cooperative society has to be compulsorily registered with the registrar of companies. This is required because there are voluntary associations. The owner's name, then the property who has bought, how much money has been involved. If something goes wrong, the company can sue file or case file against that particular part. So अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लीगल स्टेटस की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? कि इन केस कोई इश्यू क्रिएट हो जाता है तो हम एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। इफ समथिंग गोज रॉन्ग वी कैन गो फॉर कंप्लेन, वी कैन गो फॉर कोर्ट डिसीजंस ऑल्सो। यहाँ पे हम लोग एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाते हैं। अगर इसके अंदर मैंने एक पॉइंट आपको स्टार्टिंग में ही कहा था मीनिंग में कि मिनिमम 10 लोग चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए, बट उसके बाद में वंस द रजिस्ट्रेशन इज डन, मेंबर्स अगर छोड़ना चाहते हैं या आना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहोगे तो छोड़ सकते हैं, उससे ऑर्गेनाइजेशन जो मूव हो रही है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है, उसके अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्लियरली वर्ड यूज किया गया है कि आपको स्टार्ट करने के लिए 10 लोग चाहिए और उसके बाद में अगर किसी को छोड़ के जाना है या किसी को आना है तो नोटिस पीरियड पे वो आ भी सकता है और जा भी सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। जब हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत लिमिटेड होता है और साथ साथ में यहाँ पे रिस्क ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो उनके सब्सक्राइब शेयर कैपिटल पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक मेंबर को शेयर परचेज करनी पड़ती है। तो जब वो शेयर परचेज करता है तो उसी अकॉर्डिंग उनका रिस्क भी डिसाइड होता है। अगर कंपनी लॉसेस बनाती भी है तो हर एक मेंबर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में है उनको लॉसेस जो है वो मिनिमम रिस्क पर पे करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज अ सब्सक्राइब कैपिटल। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स को अगर हाईलाइट करें तो यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क जो होता है वो मेंबर का सब्सक्राइब शेयर के ऊपर होता है, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट पार्ट इज कंट्रोलिंग। Every individual in cooperative society has a equal right. Here, every man has a one vote system. If he or she doesn't have a decisions against, so it can be accepted. यहाँ पे हर इंडिविजुअल का सजेशन, ओपिनियन एंड प्रॉब्लम्स को हम लोग सुनते हैं एज ए कोऑपरेटिव मेंबर। हर इंडिविजुअल के पास पावर है डिसीजन लेने का। One case has to be showcased in the meeting and take the decisions by voting system. हैंड रेस सिस्टम होता है, वोटिंग सिस्टम होता है और वोटिंग सिस्टम के बेस पे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसीजन लेती है। तो यहाँ पे जो है वन मैन वन वोट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है और हर एक मेंबर डिसीजन लेता है तो वो वन मैन वन वोट के बेसिस पे लेता है और यहाँ पे सजेशंस, ओपिनियंस एंड प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसको वो लोग क्लियरिफाई करते हैं। यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव जो पॉइंट नंबर 5 है वो है सर्विस मोटिव। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विस मोटिव ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखती है रेदर देन मैक्सिमम प्रॉफिट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसी होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स नहीं आते, बट यहाँ पे सरवाइव करने के लिए आपको उतना प्रॉफिट्स बनाना पड़ता है जिससे आप सैलरी दे सको।
तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी वही करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करती, वो सोशल वेलफेयर के लिए करती है। और सोशल वेलफेयर में मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट्स को अवॉइड किया जाता है। और इससे क्या होता है कि नॉर्मली हर काम स्मूथली वर्क करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिया हुआ है सर्विस मोटिव, नॉट maximum profit. If any surplus is generated as a result of its operations, it is distributed amongst the member or in the form of dividend. इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट अगर कुछ बच जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेस पर, जितना भी आपने बिजनेस किया है उसके बाद में कुछ अगर बच जाता है तो वो अमाउंट को जो मेंबर्स है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यही होता है सर्विस मोटिव ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं मैरिट्स एंड डीमेरिट्स की तरफ। We are into the merits and demerits concept. So the first topic itself says equity. फर्स्ट टॉपिक सेज इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। जब हम लोग बात करते हैं तो इक्वालिटी की, तो हर एक मेंबर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में है उनके पास एक वोटिंग राइट है। तो ये हमने फीचर्स में अभी ही पढ़ा था। और ये सारी चीजें इक्वली होती हैं, यहाँ पे स्टेटस आपकी इक्वालिटी है। तो जितने भी मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में होते हैं उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में नए नए मेंबर्स भी ज्वाइन हुए, उन्होंने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी किया है, तो उनके पास वोटिंग राइट होना जरूरी है और वोटिंग राइट उनके पास होता भी है। नेक्स्ट पॉइंट है जो लिमिटेड लाइबिलिटीज के रिलेटेड है। तो लिमिटेड लाइबिलिटीज क्या है, मैंने आपको कहा था कि मेंबर्स के जो पर्सनल असेट्स जो होते हैं वो सेफ होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा रिस्क नहीं लेती। और रिस्क क्यों नहीं लेती, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल होता भी नहीं है। इसलिए पॉइंट आपको क्लियरली कहा गया होगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी the liability of every member is limited to the extent of capital contributed by him or her। जितना पैसा वो लोग लगाते हैं उतना ही अमाउंट ऑफ शेयर जो परचेज करते हैं उतने ही तक उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। और यहाँ पे अगर इन केस लॉसेस हो भी जाते हैं तो वो शेयर कैपिटल रिलेटेड अमाउंट जो पे करते हैं, बट उनका पर्सनल असेट्स जो है उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, वो उनका सेफ है। नेक्स्ट पार्ट इज स्टेबल एग्जिस्टेंस। और जब हम लोग स्टेबल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो स्टेबल एग्जिस्टेंस में ऐसा कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड इट एग्जिस्ट इज नॉट इफेक्टेड बाय द डेट, इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी ऑफ इट्स मेंबर, thus it enjoys continuation of life over a long period of time। यहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात जब हो रही है तो जैसे पार्टनरशिप में कोई मर जाता है तो उनकी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो जाती है। हिंदू जॉइंट फैमिली जो है उधर वैसा कुछ नहीं, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कुछ इंसॉल्वेंसी हो गई या डेथ हो गई तो कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर किसी की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो रही है या फिर मेंबर्स के बीच में बराबर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो भी कोई इश्यू नहीं है, कंपनी लॉन्ग लाइफ चलते रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। जब हम लोग ऑपरेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरली मैनेज किया जाता है सारे मेंबर्स के थ्रू। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो पूरे जनरल मेंबर्स के साथ में ही काम करती है। एज अ सोसाइटी एम्स टू एलिमिनेट मिडलमैन, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। आप कोई भी कोऑपरेटिव मार्केट में जाते हो ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उधर के प्राइसेस में और जो हम लोकल मार्केट में जो प्राइस लेते हैं उसमें बहुत डिफरेंसेस होता है। क्यों होता है, उसका रीजन ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी डायरेक्ट मार्केट से प्रोड्यूस करता है, जो फार्मर होता है वहां से ही परचेज करके लेकर आते हैं और वहां से परचेज करके लाने के बाद में उसको मार्केट में बेचते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो प्राइस जो होता है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है और जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके ऊपर जो रिस्क है वो भी लिमिटेड रह जाता है। पॉइंट नंबर 5 इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको लो टैक्सेस, सब्सिडीज, लो इंटरेस्ट ऑफ लोन्स प्रोवाइड करती है। तो ये एक बेनिफिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट फॉर्मेशन का कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, यहाँ पे सोशल वेलफेयर का एक ऑब्जेक्टिव है।
पॉइंट नंबर 6 इज इजी टू फॉर्मेशन। जब हम लोग इजी टू फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 मेंबर्स कंपलसरी चाहिए, जो मैंने आपको फीचर्स में कहा है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के थ्रू ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपको कुछ मिनिमम फीस भी पे करनी पड़ती है और ये बहुत ईजिली आपके लिए स्टार्टअप कर सकते हैं। आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 मेंबर्स होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन फी होनी चाहिए और आपको ज़्यादा कोई पेपर वर्क भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सोशल वेलफेयर का है। तो रजिस्ट्रार भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करने के बाद में, अप्रूवल करने के बाद में सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट पार्ट इज लिमिटेशंस। जब हम लोग लिमिटेशंस की बात करते हैं तो लिमिटेशन में पहला आता है लिमिटेड रिसोर्सेस। क्योंकि जब मेंबर्स को हम लोग लेकर आते हैं तो मेंबर्स के पास जितना कैपिटल है वो पूरा कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर कुछ शॉर्टेजेस भी होते हैं रिसोर्सेज के रिलेटेड। जैसे यहाँ पर हम लोग हर प्रोडक्ट को लिमिट लेके चलते हैं, हर प्रोडक्ट लिमिट होता है हमारे पास। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत लिमिटेड होता है, यहाँ पे बहुत कम ही लोग मेंबरशिप बन के आते हैं या मेंबर्स बन के आते हैं। क्योंकि जब मेंबरशिप आते हैं तो मेंबर अगर आते हैं तो मेंबर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट्स। तो मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड कैपिटल लेकर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। क्योंकि यहाँ पे जो 10 लोग हैं या जो 10 लोगों ने मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट किया है, यहाँ पे एक तो सैलरीज इतनी हाई होती नहीं है। हम लोग सैलरीज के थ्रू नए एक्सपर्ट पर्सन को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव रखते हैं कोऑपरेटिव, यहाँ पे हम लोग रखते हैं सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पे हम लोग हाई प्रोफेशनल पर्सन्स को ला के मैनेजमेंट हैंडल नहीं करते। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पे इफेक्टिव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 इज लैक ऑफ सीक्रेसी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो तो यहाँ पर हर एक मेंबर आता भी है और जाता भी है। तो आपकी कोई सीक्रेट बात जो है वो सीक्रेट नहीं रहती, वो हर इंडिविजुअल तक पहुँच जाती है। एग्जाम्पल, एनी बुक ऑफ द सोसाइटी एट एनी टाइम, कोई भी मेंबर जो होता है ना वह आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बुक को कभी भी चेक कर सकता है। तो आपका अकाउंट्स रिवील हो जाता है मेंबर्स में और मेंबर्स उसको आगे जाके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेड पार्ट है हमारे लिए, लिमिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। उस गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं गवर्नमेंट के ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, वो भी आके हमारे अकाउंट चेक कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पार्ट हम लोग लिमिट्स में लेके चलते हैं। वी आर गोइंग विद अ फर्दर पॉइंट इज डिफरेंस इन ओपिनियन। हर एक मेंबर को हर मेंबर का पॉइंट जो होता है वो सेम नहीं हो सकता। हर मेंबर की थिंकिंग अलग होती है, ओपिनियंस भी अलग अलग होते हैं और बहुत बार जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं वो डिले हो जाते हैं। तो वो डिले इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट जो है वो बराबर डिस्कस होते भी हैं, लेकिन जो मेंबर्स हैं उनकी व्यूज़ जो है वो अप एंड डाउन है। इसीलिए ये डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं नए टॉपिक की, तो नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग 6 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। वी विल स्टडी अबाउट 6 पॉइंट्स। वन इज कंज्यूमर, अनदर इज प्रोड्यूसर्स, थर्ड इज मार्केटिंग, फोर्थ इज फार्मर, फिफ्थ इज क्रेडिट एंड सिक्स इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। 6 के 6 टॉपिक्स जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड है और सबके सब अलग है और कोई भी टर्म एक जैसा नहीं है, लेकिन सब में एक कॉमन पॉइंट ये है कि यहाँ पे 10 मेंबर्स कंपलसरी चाहिए। साथ साथ में इनका जो मेंबरशिप वर्क जो होता है वो साथ में ही चलता है। सो हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो पहले पॉइंट जब हम लोग देख रहे हैं तो वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता क्या है, यहाँ पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विद द रीजनेबल प्राइस सेल किया जाता है। यहाँ पे कस्टमर्स को हम लोग नॉर्मली अच्छा प्रोडक्ट देते हैं और लिमिटेड प्राइस हम उनसे चार्ज करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? बाय एलिमिनेटिंग द मिडल मैन। हम लोग मिडल मैन को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं और जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं वो बल्क में लेते हैं।
तो बल्क में लेने की वजह से हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लो कॉस्ट हो जाता है, और वो लो कॉस्ट होने की वजह से हम लोग कस्टमर्स को प्रोडक्ट लो प्राइस में बेच देते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट्स या सरप्लस अगर बनाते हैं, क्योंकि हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल वेलफेयर करते हैं, अगर इन केस अगर हम प्रॉफिट बनाते हैं तो जो भी प्रॉफिट बनता है वो हम लोग कैपिटल प्रपोर्शन के बेस पे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स की भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जिसके अंदर स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं या जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका जो रिजल्ट आना होता है या जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉइंट में लिखा हुआ है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स who desire to procure inputs from production of goods in order to meet the demand of consumer। यहाँ पे स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज कस्टमर के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन कर सकती हैं और प्रोडक्शन करके वो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कंपटीशन करते हैं। दे आर नोन एज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनका एम जो होता है वो कैपिटलिस्ट रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करना, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ में कॉम्पीट करना और अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में उतारना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगर इन केस अगर प्रॉफिट हो जाता है तो यहाँ पर भी प्रॉफिट मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। Now we are going in the third point known as marketing cooperative society। जब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर वॉलेंट्री एसोसिएशंस होते हैं। यहाँ पे स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर जो इंडिपेंडेंट है वो यहाँ पर आके प्रोडक्ट को बेचते हैं। Small producers are coming to this market and sell their product according to their needs at a reasonable price। उनकी नीड के हिसाब से वो प्रोडक्ट बेचते हैं और प्रोडक्ट बेचते ही साथ साथ में वो रीजनेबल भी होते हैं। तो रीजनेबल होने की वजह से वो मिडल मैन को एलिमिनेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस मार्केट के अंदर मिडल मैन का कोई बिजनेस होता ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग मिडल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं और हम लोग डायरेक्ट प्रोड्यूस करके मार्केट में आते हैं और मार्केट में आके वो प्रोडक्ट को बेच देते हैं। तो मिडल मैन का कोई रोल ही नहीं है, और मिडल मैन का रोल नहीं है तो रीजनेबल प्राइस आपको हो जाती है, आपका प्रोडक्ट जो होता है वो रीजनेबल हो जाता है। This society also performs market functions like transportation, welfare, packaging, etc। बहुत सारी मार्केट सोसाइटीज जो होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती हैं, वेयर हाउसेस का काम करती हैं, उनका गुड स्टोर किया जाता है, पैकेजिंग का काम किया जाता है और बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे उसको बेचा भी जाता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो सेम प्रोसीजर है, हर एक मेंबर को वो उनके कैपिटल प्रोपोर्शन के बेस पे दे देते हैं प्रॉफिट्स। पॉइंट नंबर 4 है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब हम लोग फार्मर की बात करते हैं तो फार्मर्स जो होते हैं वो नॉर्मली जॉइंटली काम कर सकते हैं। कैसे होता है कि द फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय फार्मर्स एट जॉइंटली टेक अप फार्मिंग एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड हाई प्रोडक्टिविटी। 4-5 फार्मर्स इकट्ठा हो जाते हैं और एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना के ह्यूज मार्केट के लिए प्रोडक्शन करके मार्केट के अंदर जाके वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी होगी और उतना ज़्यादा लार्ज फार्मिंग होगा। तो फार्मिंग के बेनिफिट्स ये लोग लेते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर उनका जो कॉमन इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड होता है, सेव होता है। यहाँ पे हम लोग हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेटर सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाईली यील्ड वेरिएंट्स का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन करते हैं। और इससे क्या होता है कि कोऑपरेटिव फार्मर्स जो होते हैं, जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर काम करने वाले जो फार्मर्स होते हैं उनको बेनिफिट ये होता है कि लो कॉस्ट पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प मिलती है। पॉइंट नंबर 5 इज क्रिएटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता क्या है, स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज या इंडिविजुअल को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है,
हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नॉर्मली लैंडर्स के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर देती है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जब हम लोग क्रेडिटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं उनको लो रेट पर इंटरेस्ट मिल जाता है और लो रेट पर उनको फाइनेंस मिल जाती है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर स्मॉल इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत बार होता है कि मनी लैंडर्स जो होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेस पे जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर आता है तो वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पॉइंट नंबर 6 इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। Cooperative housing society is related to residential areas with the lower cost. कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आपको एकोमोडेशन मिलता है जिसके अंदर आपको घर मिलता है वो भी लोअर कॉस्ट पे। तो यहाँ पे घर कंस्ट्रक्ट करके दिया जाता है रीजनेबल प्राइस पर और बहुत सारे मेंबर्स को उनके ऑप्शनल बेसिस पे पेमेंट करने के ऑप्शन उनको मिलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको घर बनाने में हेल्प करती है और आपका घर बन भी जाता है और आपको वो पेमेंट जो करनी है वो लेटर ऑन आपको करनी होती है। So we have seen all the concept related to pre-midterm cooperative society. We will be providing the notes in next part. I'll providing the notes and then you will be having a paper writing session. You can go through with the notes. You go with the first chapter notes and second chapter notes. You will find all the answers related to that particular paper. You can write it and hope so you will be giving a positive response to that paper. That's it for today. Thank you.